Very good morning and welcome back. Now we are ready for the start of this session one. I'm going to hand over this session to Dr. Muhammad Ashraf Emullah. Over to you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So how many of you are students? B.Tech students? How many? Tech students? Faculty, women, so this course, research and development are major thing in our engineering. We try to spend these 2 days towards जो भी हम समझते हैं तो करके कैसे भी basic purpose of this course is to make you feel very comfortable that very easily it can be done in the laboratory, whatever we do. So those who are teachers, they will appreciate that we will have to write articles, we will have to construct some experimental setup. So there always remain a fear how to do that, how to find budget for that. Okay. So one simple and very cheap microcontroller platform we will be introducing you. But please don't feel that it is something very interesting or it is something very special. There are thousands of such platforms, all are equally powerful. So one such platform we are learning where comfortably anything we can imagine how easily we can do in the laboratory. Okay. So that will be the objective for B.Tech student and M.Tech student. After doing good project, good grade, that will give you entry in the interview room. But after that, क्या करना आता है? So something we should be able to do also. Okay. So you should spend much of your time towards your project work और laboratory में कुछ करके जाओगे, then your comfort of answering. ठीक है. ये मैं कर सकती हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ, मैं PCB ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं टेस्टिंग कर सकती हूँ. I don't have any education to work with 415 volt three-phase supply. So ये सब होगा तो that good CGPA will help, good percentage will help for your employment. Okay. So this course should supplement both the aspects. For teachers also, I am also in the same boat. वो पूछते हैं साल के अंत में पूरे साल क्या किया. So आर्टिकल नहीं लिखा, कुछ नहीं किया. स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया, वो that is in a lower percentage evaluation rather than और क्या किया. Okay. तो ये प्रोग्राम किया तो वो कुछ बताया जाएगा कि उन्होंने यहाँ जाके ये प्रोग्राम किया. जैसे आप लोगों ने अटेंड किया तो you will say that you organize this like that. So we have been asked to do so many activities. Okay. And if you can make our student comfortable, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा. Like I am very comfortable because junior is with me. I know that जो इसका main काम है वो होने वाला है. ठीक है. So I will have to plan properly. थोड़ा control रखना है. बाकी majority activity he will help me. That good so will happen. So before going to the actual content, हमने renewable energy theme लिया. It could have been any other thing, but today renewable energy is the theme because we are really in that era. हमारे घर पे इन्वर्टर सोलर पैनल लगा हुआ है. We do not know whether कहाँ से हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं. हमारे पैनल से ही आ रहा है या बाजू वाले के पैनल से आ रहा है या कोई नियर बाय थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है, हमें पता नहीं. इट इज ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन. ओके. बैटरीज लगा हुआ है. देन विंड जनरेटर. हमारे इंडिया वी आर वेरी लकी कि पूरा सी शोर है, सो वी कैन एनकेस. ठीक है. सो कंट्री इज हैविंग बिग विजन टू कन्वर्ट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम conventional sources to this
रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, तो मैंने स्लाइड में कुछ इंक्लूड किया है, आप भी देख सकते हो। द सोर्स इज MNRE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उस पे सब डेटा वो अपडेट करते रहते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा होता है कि 5 साल का प्लान किया है, उसको फिर 3 साल एक्सटेंड करते हैं, 2 साल एक्सटेंड करते हैं और 10-15 साल में खत्म होता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा केस, उन्होंने जो 2022 तक प्लान किया था वो अभी तक कंप्लीटेड है, तो और एम्बिशियसली टारगेट बढ़ा के गवर्नमेंट इज वर्किंग। ओके, सो मेजर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर, विंड, अदर रिन्यू, तो हमें कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा, कम कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो दिशा में देश जा रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम दैट एंगल आल्सो इट इज रिलेवेंट दैट बीइंग an electrical engineer we know how we can work with all this system। आप थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाइए, जब वहां करना होगा तब यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन। For anything good to happen, you all should be comfortable। अभी अगर मुझे अंदर घबराहट है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो nothing can happen। Similarly, all of you should be comfortable, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, सो टाइटल मैंने ये दिया है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। सो इनोग्रेशन में काफी कुछ बोला गया, अगर आप सूरत आओगे तो देखोगे कि आप लोगों का जो लोग में स्ट्रगल है, हम लोगों का वही है। रोज कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ जल जाता है, पता नहीं है कैसे करना है, सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। एवरीबॉडी स्ट्रगल इज सेम। ओके, जैसे ऐसे तो मैं थोड़ा यंग दिख रहा हूँ, बट बताया गया 95 से टीचिंग कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली द इंफॉर्मेशन वो 25 साल से टीचिंग में है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज्यादा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज वी आर इन द सेम बोट। टीचिंग लर्निंग होता है, लैबोरेटरी वर्क होता है, प्रोजेक्ट वर्क में कुछ अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, सो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स हमें जो नीड फील हुआ कि ओनली थियरी कैन नॉट हेल्प स्टूडेंट एज वेल एज टीचर फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग इन engineering। Engineering is all about doing something. It may not be a perfect system, लेकिन हमें किसी तरह उसको वर्किंग करना है। Some inappropriate design, then हम समझेंगे कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, then we can come down to the optimum one, इससे मिनिमम इससे चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे करते हैं तो हमने ये सब कोर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल ड्राइव से, रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर सिस्टम में पावर क्वालिटी है, तो उसको लेबोरेटरी में कैसे सीख सकते हैं, ऐसा एक यूनिक अटेम्प्ट किया एंड इट इज क्वाइट सक्सेसफुल। ऐसा एक लेबोरेटरी है, उसमें जैसे आज आपको देंगे तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ले लिया, देन वी विल टेक सम कांसेप्ट। अल्टीमेटली तो वही मोटर चलाना है या वही सोलर इन्वर्टर चलाना है, वही पैनल से काम करना है, तो वो कांसेप्ट तो चाहिए। So we will discuss some concept, then we will define some small milestone कि ये करना है तो कैसे करेंगे, what is the importance of that, फिर यहाँ actually करके वो सीखें। So that is what is experimental based learning। ठीक है, so renewable energy theme के around हम वो प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे, but the application of that platform is not limited to renewable energy। आप कोई और सब्जेक्ट, even mechanical engineer can attack, इतना सिस्टम से फीडबैक आ रहा है, उनके अंदर लेना है, ये एल्गोरिथम प्रोसेस करना है और ये एक्चुएटर चलाना है, दे कैन कंस्ट्रक्ट द सिस्टम यूटिलाइजिंग द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज सम बैकग्राउंड, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ऐसा सब कोर्स उधर होता रहता है, तो ये 2 दिन तो यहाँ पढ़ेंगे, बाद में किसी को ज्यादा इंटरेस्ट आया तभी ऐसे कोर्स में उधर भी आना है। नॉर्मली वी अरेंज फॉर आवर स्टूडेंट, बट आई विल अलाउ स्पेशल केस फी ऑफ यू इफ यू वांट टू कम। इट रिमेन्स फ्री कोर्स देयर। So I wrote this agenda. Why experimental based learning? Few minutes I will spend there. Then we will go to this area. What is the motivation of learning renewable energy for electrical engineers? Now older time 3-4 power station होता था और उससे पूरा स्टेट या पूरा कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता। तो अभी पावर सिस्टम का क्या स्थिति है? फॉर्चुनेटली एमटेक पावर सिस्टम इधर चल रहा है, इट इज नॉट कन्वेंशनल पावर सिस्टम। ठीक है, जनरेटर पहले साइन वोल्टेज ही देता था, अभी हम अलग अलग इन्वर्टर लगा रहे हैं, कुछ भी टाइप का वेवफॉर्म दे रहे हैं सिस्टम।
तो पुराना प्रोटेक्शन सिस्टम, पुराना मेजरमेंट, पुराना जो एनर्जी मीटर था वो जो नाप सकता था, वो ये सब जनरेटर का जनरेशन वो नहीं नाप सकता. एवरी प्लेस वी विल हैव टू रिविजिट आवर कांसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, देन प्रोटेक्शन सिस्टम, तभी वी कैन रिविजिट. सो फॉर पावर प्रेजेंट डे पावर सिस्टम कैसा है, उसमें क्या क्या सीखना चाहिए, वो थोड़ा मैं एलैबोरेट करूंगा. देन वी विल गो टेक्निकल कि अगर एक सोलर को हमें ऐसे कोई पावर सिस्टम में इंटीग्रेट करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो उसका थोड़ा डिटेल लेंगे. ठीक है. विंड और स्टोरेज, दैट इज बैटरी इंटीग्रेशन, वो मैं क्विकली थोड़ा ले लूंगा, लेकिन ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, सोलर पे ज्यादा. देन वी विल कम डाउन टू दिस प्लेटफॉर्म कि हमें ये प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा सो दैट द ऑब्जेक्टिव नंबर 4 और 5 सोलर इंटीग्रेशन वी कैन अचीव यूटिलाइजिंग दिस प्लेटफॉर्म. ओके. तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं, उसको प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है. अगर एक प्रॉक्सिमिटी स्विच से आ रहा है तो उसको मैं अंदर कैसे ले सकता हूँ, अगर एक करंट ट्रांसफार्मर से मुझे वोल्टेज करंट मिल रहा है तो उसको अंदर कैसे ले सकता हूँ, कोई मोटर पे कोई सेंसर लगा है उसको अंदर लेना है तो कैसे ले सकता हूँ. हम बहुत सारा एल्गोरिथम पढ़ते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, डीक्यू ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, साइन पीडब्ल्यूएम, वो सब चीज कैसे कर सकते हैं. वो थोड़ा हम एक कलेक्शन बनाएंगे कि इतना इतना चीज समझ में आ जाए, then that solar PV integration will be possible. And then फिर बाकी का जो रहेगा नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, तो वो एक एक चीज को हम लेंगे और कुछ कर करके हम सीखने का प्रयत्न करेंगे. ये देखिए, इज दैट मच इजी. हमें 1 किलोहर्ट्ज का पल्स विद मॉड्यूलेटेड पल्स चाहिए तो इतना इजीली बन गया. मुझे इनपुट कुछ आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करके डिस्प्ले में आरपीएम ऑफ द मोटर बताना है तो इतना इजीली हो जाता है. So one simple program how to write where we can convert input pulse into the speed of the machine. We can measure the frequency, we can measure the time period of the pulse. वो सब कैसे कर सकते हैं. हर एक चीज, हर एक सिस्टम में ऑन ऑफ रहता है, कुछ स्मॉल कीज है, उससे मुझे सिस्टम को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे. ऐसा स्मॉल टास्क लेके we will go towards solar PV integration. So this is the agenda. Target will be final session, that is tomorrow afternoon. आप लोग कुछ फीडबैक में बोलो कि नहीं सर इजी है, हम ट्राई करेंगे, कर पाएंगे, हमारे स्टूडेंट के साथ उस पर कुछ काम करेंगे. ठीक है. विद दैट आउटकम दिस ऑल एक्टिविटीज आर प्लान. तो करना यही पड़ेगा. हम भी है, आशीष सर, प्रिंसिपल सर ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया कि सब इधर ऑर्गेनाइज किया. कोरोना के एनवायरनमेंट में हम भी पहली बार बाहर निकले घर से, ऐसा फेस टू फेस आई थिंक पहली बार ही हो रहा होगा. पहली बार ही. आई हर्ड कि आपके यहाँ तो क्लासेस चालू हो गया है, हमारे यहाँ अभी भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. तो फाइनल ईयर के अलावा किसी को आने नहीं दिया, और वो कैंपस में आ गए हैं, फिर भी हॉस्टल से ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है, खाली लैब के लिए आना है, वो छोटे छोटे ग्रुप. तो ये सब कंस्ट्रेंट में वी फील आवरसेल्फ लकी इनफ कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं. पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा. वन डायरेक्शनल सुन लोगे, इट माइट हैपन दैट आउट ऑफ 10 आर्गुमेंट 9 आर्गुमेंट्स नॉट क्लियर. तो योर टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हाथ रेज करके पूछना पड़ेगा. लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. मैं जानबूझ के हिंदी यूज कर रहा हूँ, ठीक है. लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. वो जितना पता है वो तमिल में बोलोगे तो तकलीफ हो जाएगी. तो इसलिए हिंदी गुजराती आपको आता नहीं होगा, तो हिंदी इंग्लिश में हम कुछ भी. तो फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. फील फ्री, आपको पूछना है. ठीक है. बीच वाले भाई क्या नाम है उसका, बैठ के आराम से बोलना. राम कुमार. सो राम कुमार पूछना है, अगर नहीं समझ में आए तो. ठीक है. योर टाइम इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ऐसे आपका टाइम का वैल्यू समझोगे, then participation will increase. ठीक है. टेंशन नहीं है ना. नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा ऐसे. ठीक है. So if I tell you some story, so experiment based learning initial phase में हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो उसमें खाली पावर सर्किट समझाया जाता है
फिर लेबोरेटरी में बोले कि एक जरा हाफ वेव रेक्टिफायर से मुझे जरा डीसी का डीसी करके बताओ। तो इट इज वेरी, एक ही तीन ही चीज है, एक एसी सप्लाई है, एक थायरिस्टर है और एक लोड है, बस तीन एलिमेंट को सीरीज में लगाया, लेकिन अभी चला है कैसे? तो कुछ गेट पल्स चाहिए, तो कुछ ऑसिलेटर या ऐसा कुछ कंट्रोलर यूज करके पल्स बना दिया, लेकिन दे रहा हूँ तो नहीं चल रहा है, तो कुछ और सर्किट चाहिए। एसी साइकिल कहाँ चालू हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन उस पल्स को चाहिए, ऐसे रैंडमली पल्स दोगे तो चलेगा नहीं। तो ये ब्रह्म ज्ञान मुझे इनिशियली प्राप्त हो गया, तो काफी टाइम किया, कुछ आया नहीं। तो इनिशियल फेज के ये सब करने वाली बात है, ये बताने से स्टूडेंट को कितना भी समझाओ नहीं होने वाला। ओके, सो वहां से कुछ चालू किया, फिर ये ऐसे एसटीटीपी मैंने 2008 में पहली बार ये मेजर अटेम्प्ट किया था, तब ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, बट नॉर्मल 8-बिट कंट्रोलर 8051, वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न बेसिक्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। ओके, एब्सोल्यूट आइटम है, अभी नहीं यूज होता है। इंटेल इन्वेंटेड 8051, अभी उनके म्यूजियम में है, ठीक है, बट हमें पहली बार सीख रहे हैं तो डिजिटल सर्किट का, प्रोग्रामिंग का आपको बेसिक समझना है। तो आज भी SVNIT में हाफ कोर्स हमने रखा है कि जिसमें वही प्लेटफॉर्म टू मोर फ्री। ओके, यू ऑल आर सो लकी कि अभी वो सब बर्डन लेना ही नहीं है, उसका डेटा सीट, असेंबली लैंग्वेज कुछ भी नहीं, आपको सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है ना, तो सी लैंग्वेज इज मस्ट। आज के जमाने में भी 90% एम्बेडेड सिस्टम का प्रोग्रामिंग सब सी लैंग्वेज में होता है। आई एम नॉट इवन स्पीकिंग C++, ओनली सी लैंग्वेज। तो क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म तो रोज नए नए आते जाएंगे। ये 168 मेगाहर्ट्ज कंट्रोलर है, रिसेंटली आप यही कंपनी का वेबसाइट में देखोगे तो 400 मेगाहर्ट्ज का कंट्रोलर ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो वेरी रिपीटली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं कि आज कुछ सीख लिया मुझे 10 साल काम आए, अगले महीने भी नहीं काम आए। तो अंडर दैट वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया है कि देयर विल बी सम सॉफ्टवेयर जिसमें सी में लिखो, देन इट इज इमटेरियल। मैंने टेक्सास का लिया, एसटी का कंट्रोलर लिया, इंफिनियन का लिया, कोई भी लिया, देन यू कैन क्रॉस कंपाइल इट, और वो क्रॉस कंपाइलर क्या करेगा, उसको रिस्पेक्टिव कंट्रोलर के लैंग्वेज में चेंज करके उसकी फ्लैश मेमोरी में डाल दे। तो मतलब फैन कंट्रोलर मैंने बनाया जो मेरे मोबाइल से चलता है, तो एक बार मैं प्रोग्राम करके डाल दूंगा, देन इट विल कंटिन्यू टू कंट्रोल दैट फैन फॉरएवर। So C language is one major thing what you need to learn. Digital circuit का concept तो चाहिए ही, but programming नहीं कर पाओगे तो so it will be some hardware plus some program. हम उसके प्रोग्राम डालेंगे, उसके फ्लैश मेमोरी में चला जाएगा, then you don't require computer. ठीक है, उसकी फ्लैश मेमोरी में आ गया, फिर वो सिस्टम को कंट्रोल करता रहे। ठीक है, थायरिस्टर का एग्जांपल दिया तो एवरी हाफ साइकिल उसको ट्रिगर करता रहे, बाद में मुझे कुछ नहीं करना। मैंने एक बार ऐसा प्रोग्राम बना दिया, वो इसी साइकिल को डिटेक्ट करे, पॉजिटिव साइकिल इधर स्टार्ट किया, फिर वहां से जो डिले चाहिए वो जनरेट करे और थायरिस्टर को ट्रिगर करे। तो ऐसा प्रोग्राम करके उसकी फ्लैश मेमोरी में डाल दिया, देन इट इज अ इंडिपेंडेंट सर्किट, वही आईसी रहेगा, उसमें कुछ प्रोग्राम आ गया और उससे वो सिस्टम चलता रहेगा। सो 2008 से ये स्टोरी चल रहा है। पहले इट वाज लिमिटेड टू SVNIT, अभी ऑल ओवर इंडिया कहीं कहीं जा रहे हैं। ठीक है, 30+ सच प्रोग्राम हमने किया, और ये 4 मॉड्यूल कुछ डेवलप किया। ठीक है, प्रीवियसली सच प्लेटफॉर्म वाज अ वेरी कॉस्टली प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेन कंपनीज लाइक दिस स्पेस, काफी लोगों को पता होगा, ओपल आरटी, लैबव्यू। ओके, ये सब 10 लाख 15 लाख प्लस वाला प्लेटफॉर्म है, एक कंप्यूटर पे लग जाएगा और उससे आप कंफर्टेबली ये सब चीज कर सकते हैं। दिस इज few thousand rupees माइक्रो कंट्रोलर। एडवांसमेंट की वजह से अभी इसमें वो सब फीचर है वो जो आप उसमें कर पाओगे। ओके, ओल्डर टाइम में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और DSP प्रोसेसर, ये 3 अलग था, लेकिन अभी एवरीथिंग हम सी लैंग्वेज में हैज इंक्लूड math.h करते हैं, तो उसमें साइन फंक्शन, FFT फंक्शन, तो हम जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में वो यूज कर सकते हैं, ये कंट्रोलर पे भी आप सेम math.h इंक्लूड करके वो सब फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो इट सपोर्ट्स ऑल इंस्ट्रक्शंस। तो अभी DSP जैसा कुछ रहा ही नहीं, ऑल कंट्रोलर्स आर DSC, डिजिटल सिग्नल कंट्रोलर। आप उसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक है,
पहले तो काफी लिमिटेशन था, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आपको उसका प्रोग्राम लिखना पड़ता। आई एम टॉकिंग अबाउट साइन एंड एफएफटी ऑल दैट, सो सच इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल। हमें वंस इट इज अ रेडी इंस्ट्रक्शन, उसको कुछ पैरामीटर पास करना है और वो जो आंसर दे वो हमें लेके डिस्प्ले करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो सम okay, now let us go to the subject. So renewable energy, so MNRE पे पढ़ेंगे। So we have a target of 175 gigawatt by 2022. It is already achieved. तो गवर्नमेंट ने सोलर को ज्यादा, हमारे प्रधानमंत्री का प्रिय सब्जेक्ट, वी आर लीडर इन सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। ओके, तो दिस इज ऑलरेडी अचीव्ड। नेगेटिव साइड में नहीं बोलूंगा। देन 60 गीगावाट, सो मेजर, ये इसमें आप देखो तो मेजर तो सोलर में ही टारगेट किया है। भाई साहब, ये सब आपके लिए ही है, एवरीथिंग यू कैन कॉपी। ठीक है, फोटो निकालना है तो मेरा निकालना और मुझे बताना, देन आई कैन गिव यू गुड पोस्ट। समझ में आया? नॉट हैप्पी? यहाँ पे फोकस करते हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करो कि नहीं सर ये गलत बोल रहे हो, वो मुझे पसंद आएगा। So further, it is mentioned at MNRE that they are going to revise this to more 100 gigawatt by 2027 or 350 gigawatt by 2030. So हमारा जो एनर्जी नीड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीड, we are targeting heavily कि ये सब रिसोर्सेज से हम फुलफिल करें rather than हाइड्रो, कोल, थर्मल, गैस, जो काफी कुछ चीज हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो जैसे हमारा सैलरी है, इनपुट आउटपुट और कुछ सेविंग, तो कंट्री का भी वैसा ही है। तो हम जितना ज्यादा परचेस करते हैं उतना हमारा एक्सपोर्ट भी ज्यादा है, पूरा पैसा बाहर जाता है। सो इफ वी कैन अचीव दिस, देन हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारा ये पैसा हमारे लिए अवेलेबल है। Sir, why we are not working in geothermal sector? It is working, but it is in minor. It's included. Here many things are there. Major only I do. So a typical power system आज कैसा हो गया? मैंने बोला कि हर एक के घर पे सोलर पैनल है, किसी को पता नहीं है उसको पावर कहाँ से मिल रहा है। अगर मैंने घर पे सोलर पैनल लगाया, मेरा लोड, घर का लोड उससे ज्यादा है, तो वो सब मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन काफी टाइम मेरे घर में लोड नहीं है तो वो ग्रिड में जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि बाजू वाला का लाइट हमारा पावर से चल रहा है, मेरे ऊपर जनरेट हो रहा है, but actual consumption is happening in adjacent home. It is quite possible. Okay, तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसका हमें कुछ बेनिफिट मिलता है बिल में। So they are not charging us only for input units. हम जितना आउटपुट यूनिट करते हैं तो उसका सब्ट्रैक्ट होके आता है। ठीक है, so it is quite complex. Number of generators are many. They use the word distributed generation. अलग-अलग प्लेस पे जनरेशन हो रहा है, and then in the network that energy is getting consumed somewhere. The major problem with electrical energy is it cannot be stored. अभी आप जो यूज कर रहे हो अभी जनरेट हो रहा है, अभी यूज हो रहा है, वो दूर पावर प्लांट से भी आ रहा है तो अभी वहां पे जनरेट हो रहा है, अभी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। We cannot store it. बैटरीज वाला छोटा सा है अरेंजमेंट, बट मेजर इट इज नॉट लाइक के टैंक भर के रखा है और जब चाहे तब यूज करूंगा, वो नहीं होने वाला। ठीक है, सो अंडर दैट सिनेरियो कहीं से भी जनरेट होगा, कहीं पे भी यूज होगा। वन मेजर लोड विच इज टू कम, तो जितना सोलर में हमने फोकस किया, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अलग से पॉलिसी आ गया है गवर्नमेंट। सो मेजर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है कंट्री। ठीक है, तो पेट्रोल पंप की तरह हम वो इलेक्ट्रिक का लगाएंगे और हमारा व्हीकल चार्ज हो जाएगा। तो पावर सिस्टम इंजीनियर बहुत वरीड है कि वो इम्पैक्ट लोड होगा, सो मेनी व्हीकल्स यूज एनर्जी एट अ टाइम, दे विल ड्रॉप। तो वो पावर सिस्टम नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, वहां पे आप डेवलप कंट्री का स्टडी करो तो बाई डायरेक्शनल रहता है, तो वेरिएबल टैरिफ रहता है। तो दिन में जब ज्यादा डिमांड है तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज हाई, और रात को कोई यूज करने वाला नहीं है तो चीप मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, व्हीकल को स्टोरेज की तरह यूज कर लेते हैं कि रात को चार्ज कम पैसे में उसको चार्ज कर लेंगे, दिन में ऑफिस में कहीं पे पड़ा है
तो वहां से उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो उससे भी पैसा कमाते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अ बाई डायरेक्शनल, आप व्हीकल टू ग्रिड भी कर सकते हो, ग्रिड टू व्हीकल भी कर सकते हो। अभी हम तो ये ग्रिड टू व्हीकल ही कर रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे, चार्जिंग स्टेशन, बट फ्यूचर इफ यू सी डेवलप कंट्रीज दिस इज रियलिटी। ओके, वो मोबाइल से प्लान करेगा कि 12:30 बजे अच्छा है, पर यूनिट चार्ज अच्छा है तो चलो थोड़ा बेच देता हूँ, तो उसके कार से वो एनर्जी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, सो ऐसा सब फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दिस इज द टिपिकल पावर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी ये सबको इकट्ठा कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वन वे वेरी इजी डिसिप्लिन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ये कोई बोल नहीं रहा है। But in the case of balancing of loads, sir, sometimes it is difficult. Sir. That's why bidirectional is also quite easy. हाँ, उस पे आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इजी है ना हमारा। Yes, sir. Yes, sir. Only mathematical is so easy. हाँ, तो दो टाइप का सोर्स आता है एसीडीसी, और 3 टाइप का एलिमेंट आता है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। Yes. इसके आगे पीछे कुछ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? ना, बीच में ये थोड़ा स्विच आता है। Yes. Semiconductor को transit. तो वो ऑन ऑफ करने के लिए, टू कनेक्ट और टू डिस्कनेक्ट। और वो 3 एलिमेंट में से 2 तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दे डोंट कंज्यूम। कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, देयर मस्ट बी रेजिस्टर, तभी कंज्यूम होता है। मैं राइट? Yes, sir. ओके। अभी डीसी है तो टाइम के साथ वेरी नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड से ही हमारा काम चल जाता है। Exactly. एसी है तो टाइम पीरियड भी वेरी हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड भी वेरी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों में काम करता है। तो ये सब का इंटीग्रेशन का ट्रिक है, हम उसको डीसी में इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड से हो जाता है। तो नॉर्मली ये डायग्राम में आप देखो तो सबको डीसी पे लगाया है, ठीक है ना? तो जो भी विंड का आ रहा है उसको मैं रेक्टिफाई करके डीसी लिंक में डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, तो मुझे सबका खाली वोल्टेज मैग्नीट्यूड मैच करना है। फ्रीक्वेंसी वाला मगजमारी नहीं, फ्रीक्वेंसी में काफी मगजमारी है। Yes. 3 फेज सिस्टम आप लोगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी फेज सीक्वेंस, तभी 2 जनरेटर को आप साथ में लगा सकते हो। इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, वेरी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। सो आप यहाँ पे आप देखो तो डीसी लिंक पे कुछ स्टोरेज है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाएंगे और इसको जो भी एनर्जी है वहां डंप करते रहेंगे। हमारे पास कन्वेंशनल जनरेशन भी है, तो यहाँ से जितना मिल जा रहा है सो लोड विल यूटिलाइज दैट, और जो कम पड़ेगा उतना ही जनरेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंटेलिजेंटली दे आर इंटीग्रेटेड। ओके, इलेक्ट्रिकल में ऐसा बोलते हैं इजी है, लेकिन अभी हमको कोई नेटवर्क दे दे, थोड़ा सा एलसी कुछ लगा के 2-4 ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बीच में लगा दे, तो शाम तक करते रहेंगे, क्या होगा इंडक्टर वोल्टेज का, कैपेसिटर करंट का। So because of we will have to imagine, it is difficult branch as well. नहीं, मुझे भी दे दो तो मुश्किल होगा। हाँ, so EV का मेजर लोड आने वाला है, some government policy, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, ठीक है, 2030 तक। लास्ट बजट में उन्होंने काफी सब्सिडी हमें प्रलोभन दिया कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदे। सडनली अनाउंस भी कर दिया कि वो सब व्हीकल ये साल में निकल जाएगा, तो ऑटोमोटिव सेक्टर का पूरा डाउन चला गया, सब लोगों ने व्हीकल लेना बंद कर दिया। देन लेटेस्ट दे अनाउंस कि नहीं वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो अभी फिर से कुछ ऑटोमोटिव सेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेजर है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जितना फास्ट रेडी होगा तभी ये सब ऑल व्हीकल, हमें पेट्रोल का जरूरत ही नहीं पड़े कहीं से मंगवाने का, और इलेक्ट्रिसिटी से ही हम चला पाए। वो कब होगा? जब सपोर्टिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, है ना। हम कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी हमारा चार्जिंग खत्म हो गया, वी शुड बी एबल टू चार्ज। तो कार्बन एमिशन भी कम करेगा, द मोमेंट यूज ऑफ पेट्रोल डीजल व्हीकल विल डिक्रीज, और हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी काफी होगा। मेजर पैसा उधर ही जा रहा है।
So now, if we take our discussion towards the technical thing, so typical power system वही diagram है, थोड़ा block wise रखा जो हमें सीखना है. So we have different sources, solar है, wind है, storage भी रख सकते हैं, but this is costly affair. बैटरी 3-4 साल में तो रिप्लेस करना ही पड़ता है. एंड कोई भी कैपेसिटी को लो, स्टोरेज इज लिमिटेड, इनफाइनाइट एनर्जी वो नहीं दे पाए. ठीक है, सो दिस इज कॉस्टली अफेयर बट करना पड़ता है. दिस इज कन्वेंशनल जनरेशन, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी. ऐसा नहीं है, कोल तो जलाना पड़ेगा, बट वी कैन ड्रॉ वॉट एवर पावर वी रिक्वायर, अकॉर्डिंगली वो जनरेशन एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, दिस इज लिमिटेड, दिस इज ऑन द मर्सी ऑफ सन. अभी सन का रेडिएशन क्या है और पैनल का टेम्परेचर क्या है, दैट विल से हाउ मच पावर इज अवेलेबल. तो क्लाउड आ गया बीच में तो पावर कम हो गया, फिर से क्लाउड निकल गया, पावर बढ़ गया. सो दिस इज इंटरमिटेंसी नेचर, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे. ठीक है, विंड में भी ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ विंड विल डिसाइड. ठीक है, सो ज्यादा विंड आ रहा है तो ज्यादा पावर मिल रहा है. सो दिस आर, ये कंसिस्टेंट एक लोड आप ले लो, आपको इतना पावर चाहिए तो दे कैन नॉट सपोर्ट. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन कि भाई कुछ स्टोरेज ले लेते हैं, जब इसको जरूरत नहीं होगा और ये ज्यादा जनरेट कर रहा होगा तो उसमें स्टोर कर लेंगे. लेकिन जब इसको जरूरत होगा एंड दे कैन नॉट सपोर्ट, तो यहाँ से लेके हम इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड. मेनी टाइम ये नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से. ठीक है, सो वी कैन कनेक्ट लोड आइदर ऑन एसी साइड और डीसी साइड. तो जो सब रिसर्च कर रहे हैं उनको पता है, देयर आर फैंसी वर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन इज वन ऑफ देम. देन डीसी माइक्रोग्रिड, सो ये रेड वाला लाइन है वो डीसी माइक्रोग्रिड. ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड ऑन डीसी बस, लोड भी डीसी बस पे है. एज ए कंट्रोल हमें खाली सबका मैग्नीट्यूड कंट्रोल करके इंटीग्रेट कर देना है. देन पावर फ्लो, लोड को कितना चाहिए, कितना आ रहा है, तो सम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के नहीं ज्यादा आ रहा है तो इधर जाने दो. बैटरी का एसओसी इतना पहुंच गया, अभी ये ज्यादा ले नहीं सकता है तो यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस है कि भाई जनरेशन कम कर दो. तो दैट इज ऑल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आपको लगाना है. बट दिस इज डीसी माइक्रोग्रिड, बराबर. इसको मैं एसी करके तो इन्वर्टर सब्जेक्ट पिक्चर में आता है. देन इफ यू इंटीग्रेट विद अदर, or if I will not integrate with conventional grid, तो ये इसी micro grid हुआ. Micro grid means conventional grid is not there, and this is a hybrid grid के जिसमें conventional generation भी है और ये सब generation भी. Okay, load either AC bus पे लग सकता है, so we may be drawing power on AC bus or we may be drawing power on DC bus. Okay, यहाँ पे हमारा power system का knowledge काम में आएगा कि दो generator को साथ में कैसे लगा सकते हैं. So randomly inverter cannot generate some AC voltage और दोनों connect हो जाएगा. So power system में जो हमारा active power transfer का formula है V1 V2 by X sin delta. तो grid का क्या एंगल है वो देख के यहाँ पे इन्वर्टर के वोल्टेज का कुछ एंगल बनाना पड़ेगा, तो पावर हम ऐसे फ्लो करा सकते हैं. और कभी हमें लेना हो तो पावर को ऐसे फ्लो. तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन इज द मेजर थिंग. काफी लोग इसको पीएचडी करते हैं. ठीक है, so this is typical power system nowadays, and हम बीटेक के स्टूडेंट हैं, हम ये सब नहीं जानते, we cannot skip. Okay, हमें ये सब समझना पड़ेगा कैसा हो रहा है. ठीक है, तो फील्ड में जाओगे तो वो जनरेटर से आपको काम करना है, तो वो सब कंसेप्ट आपको रिविजिट करना पड़ेगा जो पढ़ते. सो इसमें टिपिकल स्टडी सभी सोलर पे फोकस करें तो क्या होगा. तो सोलर इज हैविंग इंटरमिटेंसी नेचर. थियरी में हम पढ़ाते हैं सोलर का पीवी कर्व रहता है और सोलर का आईवी कर्व रहता है, और फ्री एनर्जी मिल रहा है, क्लीन एनर्जी मिल रहा है, तो जितना मैक्सिमम पावर है वो हमें ले लेना, एक्सपेक्ट करना. ओके, सो कर्व ट्रेसिंग इज वन मेजर थिंग. मैं अगर आपको एक पैनल दे दूं तो आप कैसे फाइंड करोगे कि उसमें कितना मैक्सिमम पावर मिल रहा है. तो सिंपल एक्सपेरिमेंट व्हाट वी कैन डू इज एक रियोस्टेट ले लेंगे और पैनल के दो टर्मिनल पे लगा दिए. ठीक है,
सो रियोस्टेट का जो वोल्टेज है वही पैनल का वोल्टेज है। सीरीज में एक एमीटर लगा दिया तो कितना करंट मिल रहा है, that is the current we can measure. So, and the product of this voltage and current is the power what you are getting. ठीक है, अभी जैसे जैसे रियोस्टेट आप चेंज करोगे तो V भी चेंज होगा और I भी चेंज होगा, अकॉर्डिंगली P भी चेंज होगा। ओके, सो उसका टिपिकल कर्व कुछ ऐसा है, ये बात। सो कोई एक पॉइंट पे द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट मैक्सिमम होगा। तो हम सन से मैक्सिमम पावर ले रहे हैं वो कब बोल सकते हैं, अगर यू आर ऑपरेटिंग योर पैनल हियर। तो वो रियोस्टेट वाले केस में रेजिस्टेंस का एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू आप एडजस्ट करोगे तब यू आर हियर, जब ये वोल्टेज मिल रहा है और ये करंट मिल रहा है। ठीक है, अभी इट इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी, क्लाउड आ गया तो ये कुछ और कर्व बन जाएगा, बरोबर है। सन बहुत बढ़िया हो गया तो ये और बड़ा कुछ इधर हो जाएगा। तो कुछ पैसिव रेजिस्टर लगाने से होने वाला नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिकली वी विल बी डूइंग कि हमें कंटिन्यूअसली कुछ एल्गोरिथम से ये पॉइंट फाइंड करना है और पैनल को ऑलवेज ये पॉइंट पे ऑपरेट करना है। देन वी आर एक्सट्रैक्टिंग maximum possible energy available at that instant of time, which is continuously varying throughout the day. Are you getting the point? Yes, sir. तो कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिक्स रेजिस्टेंस से होगा नहीं। ओके, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक बूस्ट कन्वर्टर ले लेते हैं। ये सब थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन में जाऊंगा, और ये फिक्स रेजिस्टर ले लिया, और जो हम हाथ से करते थे तो इसका ड्यूटी रेशियो चेंज करके यहाँ पे पैनल लगाएंगे। तो पैनल के अक्रॉस मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या चाहिए वो ये ट्रांजिस्टर डिसाइड करेगा। सो इंटेलिजेंटली इसका ड्यूटी रेशियो में डिसाइड करूंगा, व्हिच विल मेक श्योर दैट पैनल वोल्टेज एंड करंट वो पीक पे, एंड दैट इज हाउ वी आर ऑलवेज ऑपरेटिंग इन एमपीपीटी कोड। ओके, सो अगर स्टूडेंट को ये चीज अच्छे से सिखाना है तो पहला एक रहेगा कि भाई कर्व कैसे बनाओगे। तो एक रियोस्टेट वाला मैंने बताया, दूसरा ये सर्किट मैंने लैब में ये सर्किट डेवलप किया। ठीक है, तो ये मैं इसका ड्यूटी रेशियो 100% रखूंगा, मतलब ये शॉर्ट हो गया। तो उधर कुछ है ही नहीं, तो जीरो रजिस्टर, पैनल के अक्रॉस क्या रजिस्टर है, जीरो, और इसको ओपन रखूंगा, मतलब कभी ऑन ही नहीं किया। तो ये इंडक्टर डायोड के साथ ये रजिस्टर है, ये पूरा रजिस्टर आ जाएगा। एंड इन बिटवीन मैं कुछ ऑन ऑफ किया, 50% ऑन, सो 50% ऑफ द टाइम सॉर्टेड, 50% ऑफ द टाइम आर इज कनेक्टेड। तो इसका वैल्यू कुछ इफेक्टिव वैल्यू इधर आएगा। ठीक है, सो बाय चेंजिंग ड्यूटी रेशियो वो आर को मैं वेरिएबल कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे अगर अभी पैनल का वो लेना है ये कर्व, तो मैं क्या करूंगा, ड्यूटी रेशियो का वेरी करता जाऊंगा। सो मुझे अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट मिलता जाएगा। सो ये आईवी कर्व है ब्लू वाला। सो आई विल कैप्चर सपोज 5% ड्यूटी रेशियो, दिस इज द वोल्टेज एंड करंट, 10% ड्यूटी रेशियो, दिस इज द वोल्टेज एंड करंट। तो मुझे यहाँ पे ये 10-15 पॉइंट मिला, तो ये कर्व मिल गया। ठीक है, आई विल हैव टू प्लॉट, ये मैटलैब में ही प्लॉट किया। ठीक है, फिर वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर मिल गया। वंस अगेन आई कैन प्लॉट दिस। सो रियल टाइम में ये कर्व हम बना सकते हैं, प्रोवाइडेड यू ऑपरेट दैट बूस्ट कन्वर्टर विद सम ड्यूटी रेशियो, एक्वायर वोल्टेज एंड करंट एंड देन प्लॉट। ओके, डिफिकल्टी क्या आएगा, हाउ टू गेट दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज जीरो है, आपको पैनल को शॉर्ट कर देना है। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? ओपन सर्किट वोल्टेज, पैनल को ओपन कर देना है। तो वो वाली सर्किट में हो नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, एक रिले रख दिया। तो रिले से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे ओपन सर्किट सिचुएशन मिल गया। करंट जीरो रहने वाला है और वीओसी, तो लोअर वाला पॉइंट है वो मुझे ये रिले से मिलेगा।
फिर रिले से इसको क्लोज करूंगा। अभी आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट, तो दिस इज वेरी गुड जनरेटर, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। सोलर पैनल का 2 टर्मिनल लेके शॉर्ट कर दो, क्या होगा, उसका वोल्टेज बैठ जाएगा। नॉर्मल जनरेटर में हम यहाँ नहीं कर सकते ना, यहाँ पे आप मैं बोलूँ फेज न्यूट्रल शॉर्ट करके दिखाओ तो इट इज अ स्टिफ सोर्स, तो इट विल रिजल्ट इनटू ह्यूज करंट। यार वो है वीक सोर्स है, ज्यादा करंट लेना जैसा ट्राई करोगे उसका आउटपुट बैठता जाएगा, ठीक है ना। सो वन टिपिकल स्टडी विल बी ये कर्व कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये स्टूडेंट ने कुछ डेवलप किया, तो आप डेट स्टेम के साथ जो भी डेटा ले रहे हो वो ले सकते हो, बरोबर है, उसको कुछ प्लॉट कर सकते हो। तो दिस कैन गिव बेटर फीलिंग टू द स्टूडेंट, पीवी कर्व क्या होता है, वी कर्व रियल टाइम में उसको कैसे बना सकते हैं। दूसरा आएगा कि एमपीपीटी कैसे करना है। ठीक है, तो पैनल वोल्टेज और पैनल करंट सेंस करो, ओके, और तुम कहीं पे भी हो, यू मे बी आइदर हियर और आइदर हियर। तो आप अगर यहाँ पे हो तो आपको इधर जाना है, इधर कैसे जाना है, तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको आपका ड्यूटी रेशियो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इधर हो तो वंस अगेन पीक तो इधर है, तो आपको वोल्टेज कम कराना पड़ेगा, ठीक है। So by continuously changing duty ratio, you can always be here. Okay. So अलग-अलग मेथड है like perturb and observe. तो हम यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर कितना है वो लेंगे, तो हमें पता चला कि पावर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन वोल्टेज का क्या हुआ, वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ, तो हमें पता चलेगा हम कर्व के इधर है। यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि पावर बढ़ा लेकिन वोल्टेज कम हुआ, पावर बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, तो आपको पता चलेगा आप कर्व के इधर है। So by changing incremental power आपको पता चलेगा आप इधर हो के इधर हो। आप इधर हो तो आपको क्लियर है कि मुझे वोल्टेज और बढ़ाना है, और आप इधर हो तो आपको पता है वोल्टेज मुझे कम करना है। So by perturbing हम इंक्रीमेंटली यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। कल के सेशन में इसमें डिटेल में कैसे प्रैक्टिकली करना है वो भी मैं बताऊंगा। So this pink line, so this is another good study। आप अगर खुद प्रोग्राम लिखो और ये डेमोस्ट्रेट कर पाओ कि अभी जहां पे पीक है वहीं पे मेरा बूस्ट कन्वर्टर ऑपरेट हो रहा है, देन इट विल बी अ गुड लर्निंग। तीसरा मैंने लिखा तो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो डिफरेंट पीएलएल मेथड, फिर इन्वर्टर का सब्जेक्ट बीच में आएगा, तो साइन पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर, और वो सब मिला के हाउ वी कैन इंटीग्रेट कन्वेंशनल जनरेशन, ये जनरेशन को सोलर से जो भी आ रहा है तो एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट फीड हियर डीसी। सो हाउ टू एसी सोर्स कैन बी इंटीग्रेटेड, दैट कैन बी अनदर गुड स्टेप। सो ये सब 3-4 चीज कैसे करना है उसके अराउंड ही हमारा पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। पावर सर्किट एक और बन जाएगा ये, बाकी सब होगा प्रोग्रामिंग, कि मैं अभी काउ ट्रेसिंग वाला कर रहा हूँ, आप कुछ अलग लॉजिक से प्रोग्राम लिखोगे कि ड्यूटी रेशियो 5% में बढ़ाना है, वोल्टेज करंट लेना है, उसको प्लॉट करना है, दिस इज योर प्रोग्राम, ठीक है। एमपीपीटी कर रहे हो तो मैंने वो लॉजिक बोला वो, तो आप 2 पॉइंट पे पावर देखोगे, पावर बढ़ा के कम हो, तो आप इधर हो तो वोल्टेज बढ़ाना है तो ड्यूटी रेशियो 1 बढ़ाया, फिर देखा पावर बढ़ा के कम हुआ, तो ऐसे करके आप वहां पे पहुंचोगे। सो ओनली पार्ट सर्किट विल एक बार आप बना दोगे फिर वही रहेगा, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम आप डालोगे और उससे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ फीडबैक है, कितना समझ में आया, या आप जो भी समझते हैं उसके लाइन में है, या मैं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। सम पॉइंट फ्रॉम योर साइड। आपका नाम भूल गया। राम कुमार। राम कुमार, कोई नहीं पूछेगा तो आपको तो सवाल पूछना ही है। हाँ ना, पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। सोलर के पैनल पे क्या क्या लिखा होता है? पैनल देखा ही नहीं, चलो गुड आंसर। तुम तो अच्छे हो, बाकी मेरे स्टूडेंट तो क्वेश्चन नॉट क्लियर ऐसे ही बोल देते हैं।
क्वेश्चन ही क्लियर नहीं, आंसर कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना? सो इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस स्विच। इसका दो ही स्टेटस है। ऑन स्टेटस जब वो फुल करंट अलाउ करेगा, जैसे हम ये स्विच क्लोज करेंगे तो वो फुल करंट अलाउ करेगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ नहीं रहेगा या मिनिमम रहेगा। और जब ऑफ रहेगा तो ये स्विच ऑफ रहेगा तो क्या करता है? ये आपका मैकेनिकल टक टक, ये वाला ये हाँ ओपन सर्किट हो गया, लेकिन क्या करता है? सप्लाई ऑफ हो गई, इसकी ऑफ हो गई, लेकिन स्विच क्या करता है? हाँ, हाँ, वो कनेक्ट हो गया, वो ऑन स्टेट। ऑफ स्टेट में क्या होगा? हाँ ओपन, लेकिन क्या होगा? वोल्टेज करंट वोल्टेज गुड किया है, क्या किया? मल्टीमीटर लेके स्विच के दो टर्मिनल के अक्रॉस हम वोल्टेज देखेंगे तो क्या आएगा? करंट तो जीरो हो गया, आपने बोला ऊपर हो गया, वोल्टेज हैवी, तो हमारा किरचॉफ वोल्टेज तो ये होना, सप्लाई है, स्विच है और लोड है। तो हमने करंट इंटरप्ट कर दिया तो लोड वोल्टेज जीरो हो गया, तो सब वोल्टेज सप्लाई का उधर जाएगा। तो हम ऐसा फील करते हैं कि वो ऑफ है, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वो 230 वोल्ट का स्ट्रेस फील कर रहा है। टू टर्मिनल ऑफ स्विच आर एक्सपीरियंसिंग 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन दे आर इन ऑफ स्टेट, तो वो ज्यादा काम उधर करता है। सेम चीज हमारे ट्रांजिस्टर के साथ भी होगा। When we use this transistor as a switch, जब ऑफ स्टेट में रहेगा तो it will have to withstand huge voltage। तो ट्रांजिस्टर का कुछ कैपेसिटी होगा, we have to make sure कि वो जो भी पोटेंशियल ऑन होगा तो जीरो वोल्टेज आएगा या मिनिमम 1-2 वोल्ट की जाएगा, बराबर। लेकिन ऑफ रहेगा तो यहाँ पे मैं इसको जब ऑफ करूंगा तो ये जो भी वोल्टेज है वो पूरा इसके अक्रॉस आएगा। ठीक है, यहाँ से किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे तो ये लोड का जो वोल्टेज है वो पूरा इधर आएगा। सो ट्रांजिस्टर टू टर्मिनल, उसका कलेक्टर एमीटर के बीच में मल्टीमीटर से फिर से देखेंगे तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वही आएगा, या ये वोल्टेज प्लस इंडक्टर वोल्टेज जो भी है वो उधर आएगा। ठीक है, सो इन ऑफ स्टेट स्विच विल हैव टू एक्सपीरियंस ह्यूज वोल्टेज स्ट्रेस। ठीक है ना? चलो अभी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल करते, माइक्रो कंट्रोलर पे जाना है यही सेशन में। ठीक है, तो ये सब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बूस्ट कन्वर्टर चाहिए, इसमें एक ट्रांजिस्टर है, एक डायोड है, एक इंडक्टर है, कैपेसिटर, बरोबर। फिर इसको मुझे अगर एसी ग्रिड के साथ इंटरफेस करना है तो मुझे 6 और ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर स्विच लगेगा जो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट, और यहाँ पे फिर एक्सचेंज होगा। इधर से मुझे पावर लेना है या इधर पावर देना है। कैसे पता चलेगा कि मैं इधर से पावर ले रहा हूँ या इधर पावर दे रहा हूँ? समझ, यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा whether grid is giving power or it is taking power? Depends upon the position of switch. वो तो हम कुछ कर रहे हैं। So इंडक्टर का ऐसे स्टेट ऑफ साइड ऑफ इंडक्टर, हाँ वो तो काइनेटिक फॉर्म में स्टोर करता है ना, तो कैपेसिटर जैसा नहीं। इलेक्ट्रिकली यहाँ पे आंसर है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी आता है ना पिक्चर में। तो अभी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी, रिएक्टिव पावर है ही नहीं, तो यहाँ से हम पावर ले रहे हैं, वो तब कैसा होगा? वोल्टेज करंट, साइन वोल्टेज, साइन करंट। व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? 0 डिग्री। हमने यूनिटी पावर फैक्टर बोल दिया। तो अगर करंट और वोल्टेज कुछ लिखने का होगा, नहीं है तो अभी जाने दीजिए, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो इफ VG एंड IG दोनों फेज में है तो हम यहाँ से पावर ले रहे हैं, तो उससे उल्टा कैसे होगा? यहाँ कब जा रहा है पावर?
मार्कर नहीं है ना। अरे वो वाला नहीं भाई, परमानेंट लिख के वो बोलेगा सूरत से आया था लिख के चला गया। एक केस में मैंने बोला कुछ हो रहा है ना प्रिंट लोग, दिस इज इंजीनियरिंग, किसी भी तरह उसको वर्किंग करना है। आगे थैंक यू। अगर मेरा VG IG ऐसे होगा, दिस इज VG, दिस इज IG, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पावर का कर्व बनाऊंगा तो ऐसा है, और इसका जो एवरेज वैल्यू है वो जो हम बार बार पढ़ते हैं VI cos phi तो यूनिटी करनी, वोल्टेज इनटू करंट, ये पावर। सो दिस इज यू आर ड्राइंग पावर फ्रॉम AC सोर्स। हम प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पावर ग्रिड में जा रहा है तो वोल्टेज तो चेंज होने वाला नहीं है, ग्रिड का वोल्टेज तो वही है, बट वी विल हैव टू मेक दिस करंट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। If IG will be like this, तो पावर क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज इनटू करंट नेगेटिव, सो इट्स एवरेज वैल्यू, यूनिटी पावर फैक्टर ले रहे हैं इसलिए भी आएगा, नहीं तो VI cos phi आएगा। इन जनरल देयर कैन बी सम एंगल हो, ठीक है। सो अगर ग्रिड करंट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ वोल्टेज, देन power transfer is on this side, ठीक है, at unity power factor, we are not exchanging any reactive power, ठीक है ना। सो समझिए तो इसमें कंट्रोल कर सके ऐसे 7 ट्रांजिस्टर आ गए, 7 ट्रांजिस्टर। फर्स्ट ट्रांजिस्टर उसका जॉब क्या है, everything will be as a switch. In power electronics, transistor will be used as a switch. यही आपको हमेशा याद रखना, यही दो काम करेगा, on full load current with minimum voltage, off full voltage with zero current or minimum, यही काम करेगा, यही दो स्टेट रहेगा। इसका क्या रोल है मैंने अभी समझाया, MPPT। इसमें जो भी over here power is a function of radiation and temperature, ऐसा नहीं है उसमें मैं बहुत सारा गर्म कर दूं तो ज्यादा पावर आएगा, टेम्परेचर से पावर कम होता है, ओके। सो मैंने जो आपको पूछा, वो लोग पैनल पे हमें लिख के देते हैं कि ये 500 वाट का पैनल है और उसका VPV 500 वाट पे सम वोल्ट एंड IPV 500 वोल्ट पे इतना एम्पियर, इसका प्रोडक्ट मिला के ये होता है, तो ये होता है STC, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। Which is, तो लेबोरेटरी में 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर जब लाइट उस पर गिरेगा और टेम्परेचर ऑफ द पैनल जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लैब में वो टेस्ट करते हैं इतना सन इंटेंसिटी और इतना टेम्परेचर, तो तब ये चीज मिलेगा जो उसके नेम प्लेट पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। रियल टाइम कभी 1000 मिलता नहीं है, टेम्परेचर उसको 25 मैनेज करना इम्पॉसिबल। सो रियल टाइम में टेम्परेचर बढ़ा तो पावर कम हुआ, इंटेंसिटी कम हुआ तो पावर कम हुआ, तो हमें ये 500 से कम ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज, जो भी टेम्परेचर हो, जो भी सन इंटेंसिटी हो, तब जो भी मैक्सिमम पावर है वो लाके ये कैपेसिटर में डाल देना, ये कैपेसिटर में डाल देना, राइट। तो कंटिन्यूअसली इसका ड्यूटी रेशियो चेंज होता रहेगा एम्बिएंट कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम पैनल वोल्टेज और पैनल करंट लेंगे और वो कर्व के पीक पे हमेशा रहने का प्रयत्न करेंगे, एंड इट व्हाट कैसे होगा, तो बाय ड्यूटी रेशियो ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। समझ में आया?
अभी ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में एनर्जी जाता रहेगा तो वो ओवरचार्ज होता जाएगा। सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें कि भाई बूस्ट हो, बक हो या बक बूस्ट, कोई भी कन्वर्टर यूज किसमें? आपके कन्वर्टर सर्किट के अंदर हाँ, कोई भी कन्वर्टर लगा सकते हैं। नहीं, इसका इक्विवेलेंस आप बोलो तो कुछ लोड है, हाँ वो लोड को आप वेरी कर लो। पैनल पे मैंने रेजिस्टर वाला जैसा समझाया है, हाँ सर। इफेक्टिव लोड ऑन पैनल, इंपीडेंस कनेक्टेड एट द पैनल जैसे वेरी होगा वैसे एमपीपीटी ट्रैक होगा। ठीक है, सो एनी सर्किट व्हिच कैन वेरी द इंपीडेंस ऑफ पैनल विल बी ओके। ओके तो मैं कहा था, हाँ, तो यहाँ पे ये वीडीसी कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा। लेबोरेटरी में मेजर एक्सीडेंट इधर ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 300 वोल्ट का है, तो बढ़ते वो 350 ब्लास्ट। ठीक है, तो दूसरा काम इसका आएगा। तो ये क्या करेगा, तो दिस इज लाइक अ टैंक। सो टैंक में वाटर एनर्जी जो गिर रहा है तो वो गिर रहा है। अभी इफ आई कैन मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, तो मेरे पास एक ड्रेन है बाहर, सो वो ड्रेन से मैं फ्लो को ऐसे मेंटेन कर सकूं कि जितना वाटर का लेवल टैंक का है उतना ही मेंटेन हो, तो क्या होगा, जितना इनपुट आ रहा है उतना आउटपुट जा रहा है। सो इफ आई कैन होल्ड दिस कैपेसिटर वोल्टेज टू अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कैपेसिटर 250 वोल्ट पे चार्ज है, अगर इसका वोल्टेज 250 ही रहे तो यहाँ से जितना एनर्जी आ रहा है सेम एनर्जी इधर जा रहा है। सो कैपेसिटर विल बी अ मीडिया थ्रू विच, क्योंकि ये हमें पता नहीं कितना आ रहा है, वेरिएबल कुछ भी आ रहा है, कम आएगा ज्यादा आएगा कुछ भी आ सकता है। So we will try to maintain capacitor voltage to a constant value and that much current, ये IG हमें जो एडजस्ट करना है उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहे। ओके, सो देन दिस विल वर्क इन इक्विलिब्रियम। यहाँ से कुछ वेरिएबल पावर आता रहेगा, we will maintain this voltage to a constant value और सेम एनर्जी हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर यहाँ पे लोड लगा है तो वो लोड ये एनर्जी यूज कर लेगा, हम ग्रिड में से कम एनर्जी लेंगे। ठीक है, दिस जनरेशन विल बी यूटिलाइज्ड। तो एक्चुअल सर्किट ये रहेगा। तो ये 6 ट्रांजिस्टर का जॉब है इसके साथ सिंक्रोनाइज करने का, कैपेसिटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने का, ओके, तो और लोड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का। तो लोड को 100 वाट चाहिए, यहाँ से 50 मिल रहा है तो 50 इधर से लेगा, तो AC हो जाएगा। दिस साइड इज AC, दिस इज इन्वर्टर, DC to AC, we are converting into DC to AC। तो इसका इक्विवेलेंस ये है कि इन्वर्टर हमारा एक जनरेटर हो गया और ये ग्रिड हमारा दूसरा है, तो इसको मुझे कुछ एंगल पे जनरेट करना पड़ेगा, देन दैट पावर ट्रांसफर V1 V2 by X sin डेल्टा। लैगिंग एंगल है तो पावर इधर जा रहा है, लीडिंग एंगल है तो पावर उधर जा रहा है। बाय एडजस्टिंग दिस एंगल कितना पावर जा रहा है आप फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ V1 V2 and X आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्विवेलेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इज सम AC सोर्स, यहाँ पे AC वोल्टेज मिलेगा। डन। सो ये सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ग्रिड वोल्टेज लेना पड़ेगा, ग्रिड करंट लेना पड़ेगा, कैपेसिटर वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो इतना फीडबैक मुझे सिस्टम से लेना पड़ेगा और फिर इसका गेट पल्स का ड्यूटी रेशियो मुझे ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा दिस विल हैपन। So in synchronization with grid, it is generating some alternating voltage. What we are generating is this. तो हम लोग एंगल डेल्टा को वेरी नहीं कर सकते, डेल्टा ही वेरी करेंगे। आपका डीसी लिंक अगर फिक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। So by varying delta only we will try to maintain the power. Sorry. I hope it is okay. So ये टेक्निकलिटी है, मैंने वो ब्लॉक डायग्राम में इजीली समझा दिया था। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर कंट्रोल करूंगा तो वो सब कर्व वाला काम हो गया। यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर, अगर ये थ्री फेज ग्रिड है तो 6 ट्रांजिस्टर, अगर सिंगल फेज ग्रिड होता तो 4 या 2 ट्रांजिस्टर से भी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस डीसी इनटू एसी, देन दो सोर्स मुझे कनेक्ट करना है थ्रू इंटरफेसिंग इंडक्टर। ओके,
तो अभी लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम। So MPPT control, panel voltage, panel current, some logic, perturb and observe, जो ड्यूटी रेशियो बनाएगा, बरोबर। ये पहला ट्रांजिस्टर का हो गया। यहाँ पे मेजर मैथमेटिक्स आएगा। हमारा थ्री फेज सिस्टम जो है, थ्री फेज सिस्टम जो है, वन वे इट इज वेरी गुड। थ्री फेज सिस्टम का एडवांटेज क्या है? बहुत सारे हैं। केस ऑफ मशीन रोटेटिंग है, टोटल पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है, कांस्टेंट पावर, like in case of machine there is no vibration, राइट। मुझे जो चाहिए वो transfer capacity will be increased, sir, easy to control, transfer capacity will be increased. मोर स्टेबल। अगर मैं बोलूं कि it will reduce the use of copper and aluminum. Exactly. How can you Total transfer Yes, sir. capacity will be increased, sir. Why it has become more popular as compared to other polyphase system? तो हमें सिंगल फेज में क्या चाहिए? एक कंडक्टर करंट लेने के लिए चाहिए, रिटर्न करने के लिए चाहिए। मुझे दो कॉपर का कंडक्टर लगेगा। टू फेज सिस्टम बनाया तो 4 लगेगा। Yes, sir. 90 डिग्री फेज शिफ्ट टू फेज बनाया तो 4 लगेगा। The beauty of three phase system is our that equation IA plus IB plus IC is equal to 0. और न्यूट्रल करंट इज IA plus IB plus IC, तो वो छोटा सा हम रखते हैं और जितना थोड़ा सा अनबैलेंस जो है उतना ही करंट न्यूट्रल से जाएगा। जब बैलेंस सिस्टम है तो 3 कंडक्टर से ही होगा, न्यूट्रल करंट 0। तो हम इलेक्ट्रिकल हमारा कंसेप्ट छोड़ के ये सब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर थिंग, आप लेमन लैंग्वेज में सोचोगे तो it has become popular because of this advantage. Via three conductor, three impedance you can fit. Okay. वो मैं उधर कहाँ पहुँच गया? हाँ, but उसका मैथमेटिक्स करना है तो 120 डिग्री फेज शिफ्टेड एक्सिस, फिर करंट आएगा, करंट लैगिंग, लीडिंग, विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट। तो ये कुछ डिराइव्ड मैथमेटिक्स है। Clark transformation, path transformation, very widely used in electrical engineering. Three phase की जगह अगर मेरा generator two phase होता तो Yes, sir. really there is no two phase, but imagination कि अल्फा बीटा वाला अगर 2 वोल्टेज होता तो इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। ऐसा 2 वोल्टेज होता तो हमें इक्विवेलेंस चाहिए। मुझे मेरा जो √3 cos phi टोटल पावर आ रहा है उसमें भी वही होना चाहिए। ठीक है। So some imaginary mathematics which can convert three phase into two phase. Physical two phase signal है ही नहीं, but mathematically हम लिखेंगे कि अगर some matrix से multiply कर देंगे ये BC को तो हमें B alpha B beta मिल जाएगा। But आप उसको interpret करोगे, आप कर क्या रहे हो तो you are interpreting three phase system as a two phase system. Okay. दूसरा है path transformation. Two phase to two axis. कि अगर DC होता तो DC में सबसे इजी है, फ्रीक्वेंसी का मगजमारी नहीं है। तो AC को मैं DC में कैसे कन्वर्ट करूं? AC को DC में कैसे कन्वर्ट करूं? ये सब कैलकुलेशन है सर, अभी रेक्टिफायर नहीं लगाना। तो ये अगर मेरा वोल्टेज VS है तो हम बोलते हैं कि ये इट विल ट्रैवल द पेरिफेरी ऑफ सर्कल, जो हमारा साइन वेव है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो ये एक्सिस फिक्स है, ये XY एक्सिस, ये अल्फा बीटा जो भी बोलो। तो इसका प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कुछ BD है, D और Q, ये अलोंग Q एक्सिस तो VQ है। yes, sir. बरोबर। अभी ये सिग्नल वेरी हो रहा है, ओमेगा टी हमारा ये टाइम के साथ ये वेरी हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड ये सब मिल रहा है। और 50 हर्ट्ज में ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। 50 हर्ट्ज है ना 20 मिलीसेकंड, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 20 मिलीसेकंड में उधर आ जाएगी। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ। अभी अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे डीसी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस
ये जो एक्सिस है उसको भी मैं घुमाऊंगा और एक्सिस एंड सिग्नल दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। तो ये कोई भी पोजीशन पे उसका प्रोजेक्शन इतना ही आएगा। both are rotating at the same speed, so projection of this on x axis, y axis और d axis, q axis वो हमेशा इतना ही लेंथ रहेगा। कोई और पोजीशन आप लो, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मैं ट्राई नहीं करूंगा। सो एनी अदर एक्सिस पे ये 30 डिग्री पे पहुंच गया, ये और 30 डिग्री पे पहुंच गया, इसका प्रोजेक्शन करोगे तो ये कांस्टेंट ही आएगा। हाँ, कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका आउटपुट आपको प्योर VD आप प्लॉट करोगे टाइम के साथ, तो हमारा 20 मिलीसेकंड में, तो VD भी यही रहा, VQ भी वही रहा। So this is how alternating signal you can convert into DC signal। उसमें एक्सिस को भी सेम स्पीड पे रोटेट करना है। लाइक कभी हम रेलवे स्टेशन पे दो ट्रेन देखते हैं, एक ही स्पीड पे जा रहा है तो हमें लगता है दोनों स्टेशनरी। दिस इज समथिंग सिमिलर सिचुएशन। सिग्नल भी वही स्पीड पे घूम रहा है, एक्सिस भी वही स्पीड पे घूम रहा है, so relative speed is 0। so that is how we can capture that signal into DC signal। okay, so ये, but please try to digest, it is some mathematics जिससे हम 3 फेज वोल्टेज को 2 फेज वोल्टेज बोल सकते हैं, 3 फेज वोल्टेज को DC वोल्टेज बोल सकते हैं। Are you getting? So that is what is Clark and Park transformers। so this is a complex control system। ठीक है, तो फील्ड में से क्या आएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा। फील्ड में से क्या आएगा, तो मेरा ग्रिड वोल्टेज आएगा, ग्रिड का करंट आएगा। सो ये 4 फीडबैक आएगा टू कनेक्ट दैट कैपेसिटर विद ग्रिड। वी विल सेंस DC लिंक वोल्टेज, वी विल सेंस AC वोल्टेज, ग्रिड वोल्टेज, एंड वी विल सेंस करंट। फिर ये सब मैथमेटिक्स करके हमें क्या मिलेगा, तो वो 6 स्विच का गेट पल्स। एंड दिस इज हाउ मैंने ये जो भी प्लॉट किया, इन फेज, आउट ऑफ फेज, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। आर यू गेटिंग? तो हमें अभी जब करना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा कि कोई सेंसर से, ये तो 230 वोल्ट हम सीधा कंट्रोलर में ले नहीं सकते। सो हम एक ट्रांसफार्मर रखेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो 300 वोल्ट को हमने 3 वोल्ट कर दिया और उसको हमें कंट्रोलर में अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो कुछ CT लगा देंगे करंट ट्रांसफार्मर। सो करंट ट्रांसफार्मर विल रिड्यूस इट टू लोअर वैल्यू। ठीक है, सो सपोज 100 एम्पियर करंट रिड्यूस टू 3 वोल्ट। ओके, तो उसको हम अंदर लेंगे। माइक्रो कंट्रोलर का VCC अगर 5 वोल्ट है तो 5 से ज्यादा आप उसको नहीं दे पाएंगे। ओके, सो ऑल द इंफॉर्मेशन वाया सम सेंसर you will have to reduce below 5 level और वो कंट्रोलर को हम देते जाएंगे। ठीक है, DC लिंक का वोल्टेज तो मेरा सपोज सिंगल फेज सिस्टम में 400 रहेगा और 3 फेज सिस्टम में 650 रहेगा। so via some sensor we will reduce it to small value। okay, कैलिब्रेशन रहेगा कि ये 1 वोल्ट है तो वो 600 है, सॉरी ये 3 वोल्ट है तो वो 600 है, ये 2 है तो 400 है, ये 1 है तो 200 है। लीनियर कैलिब्रेशन रहेगा, तो हम उसको वो फैक्टर से, उसके स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उसमें कितना है। बट सेंसर का आउटपुट कम वोल्टेज ही आएगा, लेस देन VCC ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो ये 3 एनालॉग वैल्यू है। सो वी नीड टू लर्न कि उसको अंदर कैसे ले सकते हैं। तो पहला छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही जाएगा कि मल्टीमीटर से मुझे पता चल रहा है कि ये 300 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, तो फेथफुली मैं अंदर ले पा रहा हूं कि नहीं। ओके, तो कुछ अंदर लेंगे, फिर जो भी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको LCD पे डिस्प्ले करेंगे कि ये 300 है, दोनों मैच हुआ तो हमारा इंटरप्रिटेशन सही है। गेटिंग? सो दिस इज हाउ बाय अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट एक्विजिशन हम पहले सीख सकते हो। फिर ये पार्ट आएगा, तो ये सब कहाँ जाएगा, ओनली प्रोग्राम। You see the complexity, ये पूरा जो complexity है, including writing space vector modulation, this will be your C program और MATLAB program। ठीक है, और कोई पॉट पिन पे आपको सीधा गेट पल्स मिल जाएगा। तो जो मेजर इंजीनियरिंग है, that you cannot learn without programming। मैंने अभी तक जो समझे आप समझ गए, लेकिन अभी बोलो करो तो ये करना पड़ेगा।
You will have to write these mathematics. Then only that V1 V2 by x sin delta वो सब होगा. ठीक है. So why I am elaborating? हम इससे दूर नहीं भाग सकते. ठीक है, ये करना ही पड़ेगा. और MATLAB में ये करते ही है ना. MATLAB में ये करते हैं. MATLAB में अगर आप सिमुलेशन करते हो तो यही चीज करते हो. उसका अल्फा बीटा किया, उसका DQ किया, PI कंट्रोलर इधर आएगा, उसका ट्यूनिंग कुछ क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड से सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन. ठीक है. नाउ गुड न्यूज इज MATLAB में प्रॉपर्ली कर लिया तो सीधा ये माइक्रो कंट्रोलर में ये प्रोग्राम चल जाएगा. ओके, नॉट इंटरफेसिंग. यू कैन डम द सेम कोड, you can dump the same code on this microcontroller. Okay. ऐसा नहीं होगा वो MATLAB में ड्रैग ड्रॉप करते वो नहीं चलेगा. वो जब जाएंगे तो वो सीखना पड़ेगा. So it is a digital system. तो MATLAB में हम क्या करते हैं, कुछ ड्रैग करके रख दिया, कुछ सेटिंग भी नहीं करते, फिर आउटपुट नहीं आया तो फिर वो कुछ सेटिंग में जाके वहाँ पे कुछ मेथड कुछ चेंज कर देंगे कि ODE दिस, और फिर रन किया आ गया तो चलो हो गया. It will not work out. Okay, so this is a digital circuit. So आपको डिस्क्रीट मोड में सिमुलेशन करना पड़ेगा. तो काफी टाइम मेरा i7 लैपटॉप है, 8 GB है, तो MATLAB कभी फास्ट चल जाता है. काफी टाइम को बहुत कुछ खोल के रखा है तो टाइम लेता है. तो वो सब ये रियल टाइम में चलना चाहिए. ओके, तो 5 सेकंड मीन्स 5 सेकंड, एग्जैक्टली इन 5 सेकंड इट शुड हैपन. ओके, सो वो बैकग्राउंड में वो सारा बहुत सारा ODE 45 वो सब ऑप्शन है, वो आप हमें यूज करने को नहीं मिलेगा. इफ योर एंड टारगेट इज कि ये बाद में फिजिकल सिस्टम पे भी जाना है और ये सब कोड उधर भी चलना चाहिए. सो सम डिफरेंट वे यू विल हैव टू क्रिएट योर सिमुलेशन, देन यू कैन यूज इट हियर. समझ रहे, हम लोग सिखाएंगे. सो नाउ इफ वी कन्वर्स टू कि हमें डिजिटल कंट्रोलर से क्या सीखे तो ये सब आ जाएगा. लास्ट स्लाइड तेरा आपको थोड़ा ये सब बहुत डिफिकल्ट है, वो दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, सब फिलिप क्रिएट करेगा, बट डोंट क्रिएट दैट. ओके, ये इजी है. वो मैथमेटिक्स तो सीखना पड़ेगा. आप ब्रशलेस डीसी मोटर कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका फिजिक्स सीखना पड़ेगा. ठीक है. आप बैटरी चार्जिंग करना चाहते हो तो उसका फिजिक्स सीखना पड़ेगा. उसको एसओसी कैसे फाइंड कर सकते हो, कांस्टेंट करंट कब देना है, कांस्टेंट वोल्टेज कब देना है, वो फिजिक्स. दिस सब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग. Once you know आपको क्या करना है, how to do that, you can learn. Okay. तो हमें एक डिजिटल कंट्रोलर में इतना आ जाए. पहला मैंने लिखा है जनरल पर्पस डिजिटल आउटपुट. तो एक पिन पे मैं डिजिटल आउटपुट, डिजिटल मतलब 0 और 5. अगर 5 वोल्ट डीसी से 0.5, अगर मुझे ऐसा आ जाए कि वो पॉट पिन को मैं जो भी रेट चाहूँ, मैं चाहूँ कि 1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज में 50% टाइम ऑन होना चाहिए, 50% ऑफ होना चाहिए. अगर ये मुझे आ जाए तो कुछ पल्स बनाना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम वेयर आई विल डिसाइड, आई विल से 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज में 25% ऑन, 75% ऑफ. लेकिन फिजिकली वहां पे ऐसा पल्स आना चाहिए जो हमें लैब में फंक्शन जनरेटर से मिलता है. हम ऑसिलोस्कोप उधर लगाएंगे तो ऑसिलोस्कोप पे प्रिसाइजली जो सेटिंग किया है वो आना चाहिए. ओके, सो छोटे छोटे प्रोग्राम हम बोले तो ये कोई पल्स ऐसे बनाए. फिर नॉर्मल मेथड ऑफ पल्स जनरेशन इज PWM. तो कुछ रिपीटेटिव सिग्नल ले लेंगे और उसको किसी से कंपेयर करेंगे, देन कंपैरिजन विल डिसाइड कि ड्यूटी रेशियो क्या रहेगा. ओके, सो वो चीज इसमें कैसे कर सकते हैं. इन्वर्टर में दो वाइडली यूज मॉड्यूलेशन टेक्निक है, सिन्यूसाइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन एंड स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन. सो एडवांस लेवल ये दो मेथड क्या है और वो हम ये कंट्रोलर में कैसे प्रोग्राम करें तो आई कैन जनरेट साइन PWM स्पेस वेक्टर, वो सीखना पड़ेगा. तो पल्स जनरेशन के साइड पे ये 3 करोगे तो वो एक बूस्ट कन्वर्टर का ट्रांजिस्टर और 6 इन्वर्टर का ट्रांजिस्टर आप कंट्रोल कर पाओ. गेटिंग फर्दर, मेरा ओपन लूप सिस्टम तो है नहीं, पल्स दे दूंगा और चल जाएगा. मुझे पीवी वोल्टेज, पीवी करंट लेना है, फिर ये पल्स बनना है.
तो मुझे पीवी का वोल्टेज और पीवी का करंट अंदर लेना आना चाहिए, समझ रहे हो? सो पीवी का वोल्टेज, फिर एक वोल्टेज सेंसर लगेगा और वोल्टेज सेंसर का आउटपुट मेरा माइक्रो कंट्रोलर में लगेगा. तो हाउ टू टेक इट इनसाइड, दैट कैन बी वन गुड एक्सरसाइज. कुछ भी वोल्टेज अंदर कैसे ले सकते. इट कैन बी वोल्टेज, इट कैन बी करंट. ग्रिड इन्वर्टर सोचेंगे तो एसी भी लेना आना चाहिए, ठीक है ना. अगर मोटर है तो मोटर में स्पेशल रिक्वायरमेंट रहता है, इसका स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है. तो ये सब चीज भी हमें, सपोज एक प्रॉक्सिमिटी स्विच लगा है और हमें आरपीएम जानना है कितना आरपीएम है, तो वी शुड नो वो पल्स को अंदर कैसे ले और अंदर लेने के बाद उसका आरपीएम और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें. और बचा पूरा वो मैथमेटिक्स. एमपीपीटी कैसे लिखे, पीएलएल आपको वो डेल्टा एंगल को ग्रिड से सिंक्रोनाइज करना है तो फेज लॉक लूप कैसे लिखे, ट्रांसफॉर्मेशन दिस अल्फा बीटा डी क्यू वो कैसे लिखे, पीआई कंट्रोलर वहां पे आप कैसे करोगे. सो बाकी बचा ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आपका. और काफी टाइम नहीं चलेगा, हम कुछ कर रहे नहीं चलेगा, तो हम मैटलैब सिमुलेशन में क्या करते हैं, तो स्कोप है हमारे पास, तो वो अल्फा बीटा पे लगा के देख लिया तो अल्फा बीटा हो रहा है कि नहीं पता चल जाता है. अभी यहाँ तो रियल सिग्नल है, रियल वोल्टेज अंदर जा रहा है और आप अल्फा बीटा कर रहे हो, तो कैसे देखोगे. ओके, सो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि बीच में जो भी कैलकुलेशन करूँ उसको मैं कुछ ऑसिलोस्कोप पे ले जा सकूँ. तो जस्ट लाइक स्कोप, मुझे फिजिकल ऑसिलोस्कोप में वो दिख जाएगा भाई अल्फा बीटा मैंने किया लेकिन वो कैसा बन रहा है. डीक्यू ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वो डीसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर मुझे ऑसिलोस्कोप पे दिख जाए तो माइक्रो कंट्रोलर में एक पेरिफेरल है और डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. तो हम अंदर डिजिटल इंफॉर्मेशन देंगे और बाहर हमें वो एनालॉग निकाल के देगा. अगर मैं मेरा अल्फा वोल्टेज है वो डीएसी को दूं और डीएसी को पिन को ऑसिलोस्कोप पे देखूं तो मुझे वो अल्फा वोल्टेज कैसा है, बीटा वोल्टेज कैसा है, पीएलएल का आउटपुट थीटा हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वो थीटा बरोबर बना है कि नहीं आप ऑसिलोस्कोप पे देख पाओगे. सो समथिंग सिमिलर टू स्कोप. स्कोप ये पेरिफेरल से हम कर पाएंगे. सो जब डेवलपमेंट स्टेज पे है तो एवरी स्टेज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, अंदर लिया प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, लेने के बाद अल्फा बीटा हुआ कि नहीं, डीक्यू हुआ कि नहीं, पीएलएल हुआ कि नहीं. तो हर एक चीज आप ऑसिलोस्कोप पे लेके देख सकते हो और समझ सकते हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ है. सो वन सेकेंड यू विल करेक्ट समथिंग और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है. सो ये समरी है, इतना ही सीखना है, देन ऑल दैट फियर विल गो. अब बोलोगे सर पैनल लाओ, मैं एमपीपीटी का अपना एल्गोरिथम बनाता हूं, ठीक है. ये पता होना चाहिए, लॉजिक कैसे लिखेंगे पता होना चाहिए. देन माइंड तो सबका चलता ही है, वी कैन फाइंड आउट सम डिफरेंट वे पीएनओ की जगह, जिससे हम वो पिक पॉइंट पे पहुंच सके, ठीक है. सो दिस इज द समरी. ओके, सो ये सब करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में जनरल पर्पस आउटपुट पिन, तो ये 100 पिन का माइक्रो कंट्रोलर में आपको समझाऊंगा. तो ऑल पिन यू कैन यूज एज जनरल पर्पस आउटपुट. आपको पल्स बनाना है हर एक पिन पे बना सकते हैं. टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली टाइमर्स यूज होता है, बराबर. आपको मैंने बोला कि 1 किलोहर्ट्ज में 50% ऑन 50% ऑफ, तो 1 किलोहर्ट्ज टाइम में कितना जाएगा, 1 मिलीसेकंड. 1/1 किलोहर्ट्ज 1 मिलीसेकंड. मिलीसेकंड बड़ा यूनिट है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, तो उसको मैं माइक्रोसेकंड में लिखूं तो 1000 माइक्रोसेकंड. तो 500 माइक्रोसेकंड तक पॉट पिन ऑफ रहना चाहिए और 500 माइक्रोसेकंड तक पॉट पिन ऑन रहना चाहिए, तो वो 1 किलोहर्ट्ज बना पॉट पिन. तो उसके लिए हमें कोई टाइमर चाहिए अंदर. तो टाइमर से वो टाइम कंप्लीट होगा. तो सपोज 1 माइक्रोसेकंड का बेस टाइमर है, तो उसको 500 बार में इंक्रीमेंट करूंगा, तब तक पॉट पिन लो रखूंगा, फिर पॉट पिन को हाई करूंगा, 500 टाइम उसको हाई रखूंगा, फिर से उसको लो करूंगा. सो दिस इज हाउ प्रोग्रामेटिकली वी कैन मेक दैट पॉट पिन to preserve status low for 500 microsecond, high for 500 microsecond, and repeatedly it will happen. So for loop में लिख देंगे. So infinite number of time मुझे 1 किलोहर्ट्ज का PWM पल्स मिलता है, ठीक है.
सो एडवांस टाइमर भी हम बाद में यूज करेंगे। स्पीड के लिए ये दो पेरिफेरल है। जनरल पर्पस इनपुट, फंक्शन जनरेटर से सपोज एक स्क्वायर वेव ले रहा हूँ तो मुझे कैसे लगाना है और अंदर कैसे इंटरप्रेट करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। मोटर ड्राइव के लिए स्पेशल यूनिट है क्वाड्रेचर एनकोडर इंटरफेस। तो सोफिस्टिकेटेड एनकोडर जो होता है जिसका बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पल्स आता है, तो मोटर ड्राइव में ये जरूरी है। ये रिन्यूएबल के लिए हम स्किप कर सकते। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, एडीसी। तो मेरा करंट तो एनालॉग है, मेरा करंट तो एनालॉग है। टाइमिंग का कौन देखेगा? मुझे ही देखना है। पंकज जी आप है ना? बिफोर 5 मिनट्स। हमारा ऐसा कुछ स्टोरी है ही नहीं कि ये सेशन में होना चाहिए। सपोज इधर रुके तो इधर पोस्ट कर देंगे, आके इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा हाउसकीपिंग एक कर लेते हैं ना, सेशन टाइम पे ही ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर 5 मिनट्स हाँ वो चलेगा, लेकिन यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी कि सर आपका 5 मिनट है। ये फॉर्मूला बहुत काम किया है SVNIT में। पहले क्या है, स्टूडेंट को क्या सर कुछ बराबर तैयारी करके आया, रिसेस गया, तो एक बार मुझे फिजिकली समझ में आया कि स्टूडेंट को तो ये तकलीफ है और एक सर 1-1 घंटा आके बोलता जाता है, उनको तो सुनना पड़ता है। तो फिर मैं कुछ सीखा, तो हम लोग टाइमर रख दिए। 5 मिनट पहले मोबाइल में रिंग होने वाला है कि अभी 5 मिनट में समराइज करना है। तो उस दिन से अभी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं। दे नो कि टाइमली ये होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा सब हमारे क्लास में भी करेंगे। तो ये इसमें सपोज मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है। पांच एम्पियर करंट में कितना वैल्यू आएगा? ये 5 एम्पियर AC करंट है, कितना वैल्यू रहेगा? ये 0, दिस विल बी 5 into, okay, this will be -5 into 2। ठीक है, अभी मुझे अंदर लेना है तो मैं करंट तो अंदर नहीं ले सकता हूँ, तो मैंने सपोज एक CT लगा दिया और CT के अक्रॉस एक बर्डन है, सम रेजिस्टर। तो यहाँ पे मुझे कुछ वोल्टेज मिलेगा विच इज प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, विच इज प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। अभी मेरा इसका क्या लिमिटेशन है? तो मेरा माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे काम करता है, तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 3.3 वोल्ट। ठीक है, सो हाइपोथेटिकली मैं क्या बोलूं आपको कि मैं 3 वोल्ट में उसको कैलिब्रेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जो V आ रहा है उसको मैं ऐसा कुछ करता हूँ, 0 + 1.5 -1। This will be the voltage across burden, CT के across जो बर्डन लगा है, समझ में आया? Okay. Now the problem is माइक्रोकंट्रोलर 0 से 3.3 में काम करता है, ये तो माइनस वैल्यू तो वो इंटरप्रेट नहीं करेगा। मैं ये सिग्नल माइक्रोकंट्रोलर पे इंटरफेस कर सकता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड लेस है, 3 से कम है, बट द डिफिकल्टी इज नेगेटिव वैल्यू इट विल नॉट रिकॉग्नाइज, वो तो 0 से 3.3 में ही काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ऑफसेट दे दूंगा, तो मैं मेरा 0 इधर ले आऊंगा, तो ये 1.5 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट का एक बैटरी इसके सीरीज में लगा दूंगा और इसको ग्राउंड बोल दूंगा। ठीक है, सो ये 0 1.5 वोल्ट, ये AC और DC दोनों साथ में हो गए। यहाँ पे वो था प्योर AC था, यहाँ पे ये प्योर DC था, तो ये दोनों मिला के ये हो गया। डन? Just I am adding two potential. Okay. So अभी क्या हुआ, all the values which will come here, मेरा माइक्रो कंट्रोलर रिकॉग्नाइज कर पाएगा। It is in the range of 0 to, मैंने इफेक्टिवली किया क्या, इसको 3 वोल्ट की रेंज में ले आया।
Now inside microcontroller we have this ADC, that is analog to digital converter. So suppose अगर ये ADC 2 bit होता तो ultimately मेरे पास 2 bit है, bit 1 and bit 2, और it is a digital. So 0 1 दो ही possibility है, तो मेरे पास 4 वैल्यू रहता है, 0 0 0 1 1 0 1 0. सो इनपुट वैल्यू को मुझे यहाँ पे कुछ नंबर मिलेगा, हम बाइनरी में इसको बोलते हैं 0 1 2 3. ओके, सो मुझे 4 नंबर कुछ मिलेगा, उसको मुझे इंटरप्रेट करना है कि मैं एनालॉग क्या दे रहा हूँ. अगर ये सिग्नल मैं इधर लगा दूं एंड हाइपोथेटिकली अगर 2 बिट का ही एडीसी है तो मुझे ये 4 में से कोई भी नंबर मिल सकता है. तो मुझे बोलना है कि 0 है तब 0 वोल्ट है, 3 है तब 3 वोल्ट है, इन बिटवीन ये दो वैल्यूज आ जाएगा. अंदर मुझे नंबर मिलेगा, वो नंबर से मुझे वोल्टेज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. अभी बिकॉज ऑफ दिस लो रिजोल्यूशन बीच का कोई वैल्यू है, सपोज 0.5 वोल्ट है, उसको भी वो इधर 0 लेगा और 1 लेगा. ठीक है, सो एक्यूरेटली वी विल नॉट बी एबल टू एक्वायर, लेकिन कुछ होगा तो यहाँ तक 0 ही लिया, यहाँ तक 1 ही लिया, यहाँ तक 2 ही लिया, ऐसा कुछ 2-4 वैल्यू मिलेगा. ठीक है, सो हियर हमारे पास 12 बिट का रिजोल्यूशन है. तो मेरे पास ऐसे 12 बिट है, हर एक बिट का वैल्यू 0 और 1 हो सकता है. सो आप पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर गिनो, ऑल 0 1 1, सो 2⁻12 तक कुछ भी नंबर मुझे यहाँ मिल सकता है. दिस इज 12 बिट, so 2⁻12 that is 4096. और डिजिटल सर्किट में 0 भी नंबर है, ऑल 0 इज 1 नंबर. यस सर. तो ये रेंज 0 से लेके 4096 4096. 0 इज आल्सो नंबर. यस सर. ठीक है, सो अभी 12 बिट एडीसी है, 3.3 वोल्ट उसको मैं दे सकता हूँ. तो ये एक नंबर जो चेंज होगा वो क्या रेंज में चेंज होगा, तो 806 माइक्रोवोल्ट. ओके, सो मैक्सिमम मेरे पास 3.3 वोल्ट है, विच इज 3300 मिली वोल्ट. उसको 4095 से मैं डिवाइड करूंगा, देन दिस वे. तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो मुझे 0 नंबर मिलेगा. जैसे ही वो क्रॉस करके 800 माइक्रोवोल्ट को क्रॉस किया तो मुझे 1 नंबर मिलेगा. जैसे 1600 माइक्रोवोल्ट को क्रॉस किया तो 2 नंबर मिलेगा. So inside it is digital. So I will get some number. So that number will be equivalent to this resolution. So जैसे जैसे एनालॉग वैल्यू का एम्पलीट्यूड वेरी होगा, मुझे अंदर कुछ नंबर मिलता जाएगा. सपोज 1 2 3 4. And that maximum, that number will have this range 0 to 4095. It is because of ADC resolution. Okay. तो अभी देखिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अंदर आपको प्रोग्राम में नंबर मिलेगा और आपको सेंस क्या करना है ये चीज. ठीक है, सो आफ्टर गेटिंग नंबर हम क्या करेंगे, मैं एडीसी को दे रहा हूं, एडीसी को 0 से 3 वोल्ट में ये सिग्नल दे रहा हूं. दिस इज द करंट, कन्वर्टेड करंट. ठीक है, यहाँ पे मुझे नंबर मिल जाएगा which can have any value between 0 to 4095. तो अभी मैं उसको ये करंट में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर मिलने के बाद जो भी नंबर मिला that divided by 3.3 by 4095. तो ये जो भी नंबर मिल रहा है, so this is 800 millivolt, approximately 800 मान लो. This is 1600 millivolt. This is 2400 millivolt. Corresponding to number मुझे ये सिग्नल मिल गया, right? So I will just have to multiply with this slope. So there is a linear relation, count versus voltage. So this is the relation. तो जब 3.3 है और 4095 है, इन बिटवीन आपको जो भी नंबर मिल रहा है उसको आप ये स्लोप से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यू कैन कन्वर्ट योर नंबर
इनटू एडीसी चैनल पे क्या वोल्टेज लगाया, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हमने दो मैनिपुलेशन किया था, एसी को डीसी कर लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसमें से मैंने 1.5 वोल्ट का बैटरी ऐड किया था, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। मैंने इसको ऊपर चढ़ाया था ना ये बैटरी से, तो दूसरा नेक्स्ट स्टेप करूंगा मैं, उसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो ये गया, ओरिजिनल एसी करंट आ गया, ठीक है। नाउ अभी भी इसका मैग्नीट्यूड तो +1.5 एंड -1.5, तो फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा 1.5 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 5√2 डिवाइडेड बाय 1.5, so this will become answer. This is a gain of my sensor. CT मुझे दे रहा था कि जब 5√2 होता है तो 1.5 मिल रहा है, तो ये CT का जो गेन है, ओके। सो यहाँ पे जो आया that is the original current, that is the original current, okay. So this is how this unit is very important, ADC। आपको कुछ नंबर मिलेगा, टाइम बिंग मैंने आपको करंट का एग्जांपल लेके समझाया, इट कैन बी योर डीसी वोल्टेज, it can be your grid voltage, it can be your PV panel voltage, PV panel current, कुछ भी आ सकता है, okay। So process बहुत सिंपल है, ADC का आउटपुट कुछ नंबर मिलेगा, उसको आपको ये गेन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपने ADC चैनल पर फिजिकली क्या सिग्नल लगाया है दिस वो मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ मैनिपुलेशन किया है कि नेगेटिव साइकिल रिकॉग्नाइज करने के लिए डीसी ऐड किया है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे प्योर एसी मिल जाएगी। द नेक्स्ट स्टेज इज योर सेंसर गेन। आपने जो भी सेंसर यूज किया है, टाइम बीइंग इट इज अ करंट ट्रांसफार्मर, इट कैन बी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इट कैन बी होल करंट सेंसर, इट कैन बी होल वोल्टेज सेंसर। आपका सेंसर का जो गेन है उससे फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द ओरिजिनल सिग्नल। तो इजीली नहीं आएगा, ये स्टेप्स करना पड़ेगा, बट इट इज अ स्टैंडर्ड स्टेप। इसमें कुछ दूसरा सिग्नल लोगे, अभी पीवी पैनल पे बात करें तो ये कुछ नया नहीं आएगा। पीवी पैनल डीसी वोल्टेज है तो हम ऑफसेट नहीं ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा, ओके। बट यू विल गेट सम काउंट को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है, मैग्नीट्यूड को सेंसर गेन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी यूजफुल पेरिफेरल, उसके बिना कोई एनालॉग अंदर जा ही नहीं सकता है, एंड दिस इज द प्रोसेस। It is analog to digital. You will get some digital number. Physically ऐसा रहेगा 000 12 टाइम, that is 0. ठीक है, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं 4095, तो it will be some number. So 12 बीट से इसका some 1010 वैल्यू, that is what we are saying 4095. Okay. कुछ समझ में आया? 10 minutes more, then there is no issue. I can complete. I hope this is okay. तो कल के सेशन में इसका एक्सरसाइज रखा है हमने, ये जो मैंने मल्टीप्लाई समझा है वो हम करके देखेंगे। तो हम कुछ वोल्टेज ले लेंगे और फिर हमें कुछ नंबर मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करके फिर एलसीडी पे वो वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो मल्टीमीटर से हमें पता है मैंने 1 वोल्ट दिया था तो वहाँ 1 ही आना चाहिए, तो ये प्रोसेस सही है। सो दैट स्मॉल एक्सपेरिमेंट हम ये सीखेंगे। So this slide is all about हमें माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो पहले मैंने पल्स जनरेशन का सीखा, बोला पल्स अंदर कैसे लेना है वो बोला, बरोबर है। देन दिस एनालॉग पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालॉग हमें अंदर लेने नहीं आता है तो बात खत्म है ना, कुछ नहीं करता। ओके, सो एडीसी विल बी द इंटरफेस एंड फाइनली वो ऑसिलोस्कोप वाला, स्कोप वाला कि कुछ कर रहा हूँ आंसर नहीं आ रहा, डिबग कैसे करूंगा। तो डीएसी अपोजिट टू एडीसी, अंदर हम नंबर देंगे, बाहर एनालॉग मिलेगा, ठीक है। सो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, अल्फा बीटा का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, वीए वीबी वीसी इनटू दैट मैट्रिक्स, तो जो भी आंसर आया तो अंदर मुझे पता कैसे चलेगा, तो उसको हम डीएसी से बाहर निकालेंगे। तो ऑसिलोस्कोप पे मुझे अल्फा बीटा दिख जाएगा, द वे इट इज सीन इन स्कोप। सो दिस इज द समरी। और ये सब पेरिफेरल तो रहेगा ही, है ना। एलसीडी पे कुछ लिखेंगे, पीवी वोल्टेज इतना, पीवी करंट इतना, तो कोई अप्रिशिएट करेगा कि अच्छा है तुम्हारा प्रोग्राम।
स्पीड लिखेंगे, है ना, कीबोर्ड देंगे, स्टार्ट किया स्टॉप किया, तो कीबोर्ड एलसीडी वो सब स्टैंडर्ड चीज जो डिजिटल सर्किट में होता है। और one more difficulty working with power electronics is, यहाँ पे मैंने ये दो फेज और न्यूट्रल को शॉर्ट कर दिया, तो फ्यूज का वायर जलेगा और सब बच सकता है, लेकिन हमारे सर्किट में वो प्रोविजन नहीं है, राइट। कभी कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो बिफोर फ्यूज हमने सीरीज में लगाया, तो फ्यूज का वायर जलेगा, उससे पहले तो आईजीबीटी डायोड सब आपको हाँ एस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा काला केबल भी काला। तो डिफिकल्टी इज, अगर वो पावर सिस्टम वाला है दे विल अप्रिशिएट, तो हम फ्यूज कैसे सिलेक्ट करते हैं, आई स्क्वायर टी रेटिंग, ठीक है। तो हम आई स्क्वायर टी रेटिंग वायर का ऐसा रखते हैं कि बिफोर सिस्टम मिल्ड फ्यूज का वायर ओवरलेट होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर स्विच का आई स्क्वायर टी रेटिंग बहुत कम होता है, नॉर्मल फ्यूज से वो प्रोटेक्ट नहीं होता, तो हमने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया है। मेरा सोलर इन्वर्टर ग्रिड के साथ तभी कनेक्टेड है जब मैं ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करा रहा हूँ। सो द वे टू प्रोटेक्ट द सिस्टम इज, जब भी कुछ एबनॉर्मल लगे यू स्टॉप गेट पल्सेस, सब लॉजिक बंद कर दो, नो गेट पल्सेस टू नो 7 ट्रांजिस्टर, खत्म, प्रोटेक्शन हो गया, आईजीबीटी को कुछ नहीं होगा। सो एक इंटरप्ट रहता है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, जब भी पता चला कि देयर इज अ इमरजेंसी, सब लॉजिक छोड़ देना है और गेट पल्स विड्रॉ कर लेना है। तो दिस इज हाउ नॉर्मली पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन। ओके, हम लोग लैब में डेमोस्ट्रेट करते हैं सोलर इन्वर्टर के आउटपुट में नेट शॉर्ट सर्किट करो, ओके, आईजीबीटी को कुछ भी नहीं होगा, वो सब गेट पल्स बंद हो जाएगा, आपको देगा कि फॉल्ट है, you remove the fault, once again you start giving gate pulse, सब चालू हो जाएगा। But the method is this, not fuse. Okay, so this is also another important peripheral कि external interrupt हमें पता होना चाहिए। And simple logic है, जब यहाँ से इमरजेंसी आया तो ये सब कुछ काम का नहीं। Stop acquiring, stop generating gate pulse, stop controlling. All pot pin will be low. So as a result, all gate pulse is 0. All IGBT of system is protected. Okay, और एक LCD पे मैसेज लिख देंगे कि there is a fault. Okay. So this is the summary, useful peripheral of microcontroller. Yes. आपको मुझे एक ही बार बोलना है, आपने 10 बोल दिया तो खत्म है। ऐसे ही बोल रहा हूँ। So now आफ्टर ब्रेक हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये बोर्ड आप लोगों को समझाना है। आर्म कंट्रोलर, सो ये छोटा सा जो रेक्टेंगल है 100 पिन माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके अराउंड हमारा सब चर्चा है। बट हमारे एक सीनियर बहुत प्रोफेसर है जो इसमें कंट्रोलर में काम करते हैं, वो बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग पे 5-5 या 6-6 कंट्रोलर काम कर रहा है। इसी में 4-5 कंट्रोलर है, इसमें कंट्रोलर है, इसमें कंट्रोलर है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग यूनिक और इसी में और भी कुछ लोग हैं उसमें इससे ज्यादा फीचर हो सकता है। ये सब फीचर सभी कंट्रोलर में मिलेगा, ठीक है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म वी हैव लर्न, और वो आपसे शेयर कर रहे हैं इससे ऐसे कर सकते, लेकिन मिस इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है कि इससे जो होगा दुनिया में कहीं और से नहीं हो सकता। ओके, तो इट इज वन, मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन से इसका 5-6 गुना पॉपुलेशन है। और हम जब कंप्यूटर में यूज करते हैं सीपीयू, ये सब सीपीयू, ओके, तो कंप्यूटर सीपीयू इज लेस देन 5%, व्हिच इंक्लूड्स मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन। बाकी सब कहाँ गया, तो ये सब एसी में 4-5 लगा होगा। हम कार में बोलते हैं कि इतना माइक्रो कंट्रोलर, और घर पे एक छोटा सा माइक्रोवेव है, इस पे कितना सा लगा है, फ्रीज में लगा है। दिस आर ऑल सीपीयूज, ओके। सो दिस इज वन सच आईसी। सो ये 100 पिन का
ठीक है 3.3 वोल्ट हमें इसको पावर सप्लाई देना है, बाकी पिन को कैसे यूज करना है तो ऑल दोस फंक्शनलिटी, किसी को हम एडीसी की तरह यूज करेंगे, किसी को डीएसी की तरह यूज करेंगे, किसी को इनपुट पल्स लेने के लिए यूज करेंगे, किसी को पल्स जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। सो इट विल रिड्यूस टू दिस 4 फंक्शन। माइक्रो कंट्रोलर इससे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन अंदर लेगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन बाहर निकालेगा। तो हम पल्स जनरेट कर रहे हैं, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन हम बाहर निकालेंगे। फंक्शन जनरेटर से एक 10 किलोहर्ट्ज का पल्स हम अंदर लेके उसका फ्रीक्वेंसी नाप रहे हैं, तो वो पल्स अंदर लेगा। वन इज DI डिजिटल इनपुट, अनदर इज DO। अपोजिट टू दिस करंट सेंस कर रहा हूं, सो ये है एनालॉग इन, कुछ एनालॉग वैल्यू है वो हम अंदर ले रहे हैं। इंटरफेसिंग ब्लॉक विल बी एडीसी ब्लॉक को वो लगना है अंदर, तो डिजिटल ही रहेगा। इनसाइड दिस एवरीथिंग विल बी डिजिटल, बट एडीसी ब्लॉक है वो उसको इंटरप्रेट करके आपको नंबर दे देगा कि दिस वोल्टेज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर। और वो जो अभी मैंने थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया, वो मैथमेटिक्स से हम कितना एनालॉग वैल्यू है वो निकालेंगे। एंड द फोर्थ वन इज डीएसी, दैट इज अंदर डिजिटल है, हमें बाहर एनालॉग। तो ये 4 ऑपरेशन में इसका सब आ जाए, EIO एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, DID डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। सो one way of looking to all the program what you will be learning is ये 4 ऑपरेशन इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। Then writing complex algorithm will be other. Okay. So यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। After lunch मैं थोड़ा समझ लूँगा और या जुनैद will explain all this. इसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। And from the same point we will take it. Thank you. Thank you so much, sir. That was really very fabulous, and we learned a lot of things. Now, dear friends, we are moving for lunch break. We will meet here after just 1 hour. Thank you so much. Let's forward for the lunch, right? And those